Auzbillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my viewers. Your host Asif Salim with a new video. Today we shall discuss about the curriculum design. What is the curriculum design? A curriculum design is a framework. It is a structure and the planning about the curriculum. It is the deliberate organization of the curriculum within a course or the classroom. An instructor identifies that what will be done, who will be done, and when it will be done to achieve the specific objectives. Design should be adopted according to the objectives, according to the subject nature and the student's nature. Only through the suitable design we can achieve our objectives best, and the suitable design makes it possible to which is very difficult and impossible things, it make the possible and easy. As it involves the planning activities, assessment, arrangements of the selected content and altered learning experiences. We should to keep in mind the basic four elements of the curriculum before going to make a design. These elements are: first, aims, goals and objectives; second, content; third, learning activities, other learning experiences or methodologies; fourth, evaluation. I have made a video on the elements of the curriculum. Please watch in a detail. There are the three types of the curriculum designs. I also have made a video on the subject-centered, learner-centered, the problem-solving-centered curriculum. So please watch them in a detail. I have made the video. So here I explained only briefly here. For detail, please watch my previous videos. Subject-centered curriculum, it focuses only on the content, knowledge, and the teacher is the mainly authority in this design. Learner-centered curriculum, it focuses on the students' interests, needs, demands of the students, and the students seems to be active, whereas the teacher role is passive in here. The problem-solving design, it focuses on the specific issues only, and it is also the student-centered approach and inquiry base. These are the basic three designs about the curriculum. जी नाज़रीन, आज हमने करिकुलम डिज़ाइन के मुतालिक पढ़ा है। करिकुलम डिज़ाइन असल में है क्या? करिकुलम डिज़ाइन जैसा कि डिज़ाइन जो होता है, बनाया जाता है कि ऐसा डिज़ाइन उसको करिकुलम को बनाया जाता है इस तरीके से कि हम अपने ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। वो तमाम कंपोनेंट्स, वो चीज़ें तमाम को मद्देनज़र रखते हुए हम इस तरह का करिकुलम को डिज़ाइन दें कि हम आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। आम सादा अल्फाज में डिज़ाइन एक फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है, प्लानिंग है, उन तमाम चीज़ों की इंस्ट्रक्टर जो बनाता है कि ताकि हम क्लासरूम में या कोर्स से मुतलिक वो तमाम तर चीज़ें जो है वो आसानी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि ये एक एक्शन प्लान होता है टीचर का कि भी हम अपने करिकुलम से मुतालिक अमली तौर पर किस तरह से ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकेंगे। वो तमाम चीज़ें जो आसानी के साथ बच्चा पढ़ सके, समझ सके, वो कौन सी चीज़ें हम लेकर आ सकेंगे। ये डिपेंड करता है कि वो करिकुलम जो है वो किस नेचर का है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्या बच्चों से अखज़ करना चाह रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। अगर हमने नॉलेज प्रोवाइड करना है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़ाहिरी बात है फिर हम सब्जेक्ट सेंटर्ड को लेकर आएंगे। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, बताना है, समझाना है और बॉडी ऑफ नॉलेज को हम देना चाह रहे हैं, तो फिर हमारा मकसद जो होगा वो आमतौर पर हम सब्जेक्ट सेंटर्ड को लेंगे। और इसकी अजम्पशन ये होती है कि टीचर जो है वो ज़्यादा बच्चों से बेहतर जानता है, क्योंकि छोटे बच्चों को इतना इल्म नहीं होता, दराक नहीं होता, तो वहाँ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच डिज़ाइन को अपनाना पड़ता है। बाकी एलिमेंट्स वही उसके करिकुलम के हैं। हर जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उनमें तमाम में वही चीज़ें देखेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, एम्स, गोल और ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए, तमाम कंटेंट को देखते हुए
उसकी फिर स्ट्रेटजीज मेथोलॉजीज अपनाएंगे, ठीक है। उसमें हमने कौन से मॉडल्स ला सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, वो तमाम चीज़ें फिर हर डिज़ाइन में आएंगी, ठीक है। फिर उसकी एवेल्यूशन फिर देखते हैं, ये तमाम चीज़ें करिकुलम डिज़ाइन में देखेंगे। इसी तरह जो लर्नर सेंटर डिज़ाइन होगा, तो लर्नर सेंटर डिज़ाइन में हम स्टूडेंट्स, ये उस वक्त फोकस किया जाता है कि हमारा जब मकसद, हमारा ऑब्जेक्टिव जो हो ये हो कि हम बच्चों को की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, बच्चों में क्रिएटिविटी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने खुद से फैसला तय करें कि वो उनकी क्या डिमांड और ज़रूरियात हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से हम स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी तरह का है कि जो स्टूडेंट सेंटर्ड पे ही फोकस करता है, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर बच्चों से इंक्वायरी करवाते हैं, मतलब उससे टीचर भी मिलकर उसकी मदद करता है बच्चे की, ठीक है। उसमें बच्चों को वो हेल्प आउट करता है मसले को हल करने के लिए, ठीक है। और बच्चों को आपस में मिलकर काम करने के दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये एक डिज़ाइन है कि हम बच्चों से उनके ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने करिकुलम को इसी तरीके का डिज़ाइन देते हैं। जी डियर व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अ, कल इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ हम आएंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।